بڑھتے رہیں گے، لیکن ہمارے یہاں پر بھی کچھ اسلامی بھائی موجود ہیں جو کہ آج مقابلہ کر رہے ہیں سیمی فائنل کے لیے. ہماری دونوں طرف کی ٹیمز تیار ہو کر سرما لگا کے نظر آ رہی ہیں، آج تیار ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے چہرے یوں ہی جگمگاتے رہیں، فیضان اعلیٰ حضرت مناتے رہیں. اور سلسلہ ذوق نعت اب شروع کر رہے ہیں. آئیے اپنے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے ہماری ٹیم آئی ٹی اور ٹیم جامعۃ المدینہ کے درمیان. ہمارے بہت ہی پیارے پیارے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں. ٹیم آئی ٹی پچھلے مرحلے میں آپ پیچھے رہ گئے تھے، اس کے باوجود انہیں آگے آنے کا موقع مل گیا. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ان کے زیادہ پوائنٹس تھے، اس لیے یہ آگے آئے. اور جامعۃ المدینہ کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مقابلہ جیتا تھا، اور یہ آج ان دونوں کا مقابلہ ہے. دیکھیں گے کون آگے بڑھتا ہے. ہماری مدنی چینل کے نعت خواں بھی موجود ہیں، اور آئی ٹی کے اور جامعۃ المدینہ کے شعبے کے اسلامی بھائی بھی اس میں موجود ہیں. اس سے پہلے دو باتیں آپ سب سے کروں گا، دو باتیں آپ سب کی گوش گزار کروں گا. آپ سب ناظرین اور حاضرین بھی اس کو توجہ سے سنیں. انشاءاللہ عز و جل اب ان قریب 25 سفر المظفر آنے والا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہمیں دھوم دھام سے منانا ہے. انشاءاللہ منانا ہے نا، انشاءاللہ. انشاءاللہ کی صدا بھی بھرپور نہیں. انشاءاللہ 25 سفر المظفر کو عرس اعلیٰ حضرت منانا ہے ہمیں فیضان مدینہ میں آ کر، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دھوم دھام سے انشاءاللہ جشن رضا منائیں گے، اور ذوق نعت کا فائنل بھی ہوگا. اور یہ انشاءاللہ اس بار اسٹوڈیو میں نہیں ہوگا بلکہ نیچے صحن میں ہوگا. تو آپ سب اسلامی بھائیوں کو، حاضرین کو بالخصوص میں دعوت دیتا ہوں، ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب اسلامی بھائی عرس اعلیٰ حضرت منائیں گے فیضان مدینہ میں آ کر. مدنی منوں کو لائیے، مدنی منیوں کو بھی لائیے، اپنے ساتھ دوستوں کو لائیے. انشاءاللہ ہم جھوم جھوم کر مناقب اعلیٰ حضرت بھی پڑھیں گے، محفل نعت بھی کریں گے. انشاءاللہ مدنی مکالمہ بھی ہوگا. نگران شورا امید ہے ہمیں وقت عطا فرمائیں گے. ہم اعلیٰ حضرت کی سیرت کے بارے میں اس دن ان سے سیکھیں گے، سنیں گے بھی، اور ذوق نعت کا فائنل بھی ہوگا. اور اس کے بعد آخر میں لنگر رضویہ بھی کھائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس دن بھی 12 بجے تک اپنا سلسلہ اینڈ کر دیں، تاکہ دوسرا دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے، زیادہ اسلامی بھائی آئیں، مدنی منیاں آئیں، ان کے سکولز وغیرہ کا بھی حرج نہ ہو، اور سب کے سب جو ہیں وہ لنگر رضویہ سے بھی مستفیض ہوں. لہٰذا آپ سب کو انشاءاللہ آنا ہے. اور یہ دعوت میں پیش کر رہا ہوں 25 سفر آنے والی منگل 14 نومبر یہ دن ہوگا، اور تقریباً 8:30 بجے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. نگران شورا بھی امید ہے ہمیں وقت عطا فرمائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کو لے کر چلیں گے، جشن رضا منائیں گے. ذوق نعت کا فائنل بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ آپ تقریباً 16 دن سے دیکھ رہے ہیں، اور مزید آپ دیکھتے رہیں گے 25 سفر تک. اس سلسلے کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ پر بہت زیادہ اخراجات یقیناً آتے ہیں. آپ سب دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانسمیشن جو ہے وہ کس انداز سے کی جاتی ہے، ایک ایک چیز پر یقیناً جو ہے وہ مال بھی خرچ ہوتا ہے. ہمارا اتنا زبردست سیٹ آپ نے دیکھا، اس پر بھی بہت سارا خرچہ ہوا ہے. اور کم و بیش اب تک جو اس سیٹ پر جو اخراجات ہمارے لگے ہیں، اس کی جو پاکستانی کرنسی میں وہ رقم ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے. اور اس کے علاوہ بھی مزید اخراجات ہوتے ہیں. ہم اس کے لیے اس سے پہلے تک تو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اب چونکہ میں نے لنگر کا بھی کہہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت میں اخراجات ہوتے ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ آپ اگر تعاون کرنا چاہیں یا لنگر رضویہ میں حصہ لینا چاہیں تو آپ فیس بک پر ہمارا جو لائیو چل رہا ہے اس کے ذریعے وہاں پر میسج چھوڑ دیجئے، یا ہمارے جو نمبرز چل رہے ہیں کالز کے ان پر رابطہ کر کے بتا دیجئے، یا ویب سائٹ جو ای میل آئی ڈی چلتی ہے اس پر آپ feedback@madanichannel.tv پر بتا دیجئے، اپنا نمبر دے دیجئے. آپ جو پیش
کرنا چاہیں دنیا میں کہیں بھی ہو آپ اگر اس سلسلے کے لیے لنگر کے لیے آپ پیش کرنا چاہیں تو آپ ہمارے نمبرز تک اسے پہنچا دیں, اپنی جو ہے مدد ہے وہ پہنچا دیں. انشاءاللہ آپ سے ہمارے اسلامی بھائی رابطہ کریں گے اور آپ کی جو بھی رقم ہوگی اس کو لیا جائے گا, اور دھوم دھام سے فیضان اعلیٰ حضرت منانے کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کا حصہ بھی اللہ نے چاہا تو ذریعہ اجر آخرت بنے گا. جو اسلامی بھائی خود نہیں کر سکتے دوسروں کو اس میں حصہ ملانے کا جذبہ دیں. اور دوسری بات کہ فیضان اعلیٰ حضرت جہاں منا رہے ہیں وہیں پر عرس اعلیٰ حضرت کی رات اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے, اپنے گھر کو سجانے کی ترکیب بنائیں, اور 12 ربیع الاول کی آمد سے پہلے 25 سفر کو ہی اپنے گھروں کو سجا لیجئے, پرچم بھی لگا لیجئے, اور دھوم دھام سے جشن رضا کے ساتھ ساتھ جشن ولادت کی بھی خوشیاں منائیے. تو اچھا انشاءاللہ بھائی یہ سنا کہ کچھ اس مبارک دن میں آپ کچھ زیارتیں بھی کروائیں گے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس دن جو ہے ہمارے جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ آئیں ان کو مزار اعلیٰ حضرت کی مبارک چادروں کی بھی زیارت کروائیں گے, سبحان اللہ. اور خاک پاک بھی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کی ترکیب بنائیں گے. ہند عبد المصطفیٰ نوری صاحب کے مزار شریف کی چادر بھی, مزار شریف کی چادر اس کی ہے, بھی انشاءاللہ زیارت امامہ کروائیں گے. شریف بھی امید ہے کہ ہمیں ملے گا, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بھی زیارت کروائیں. عاشقان رضا کے لیے بہت کچھ ہے, بس آپ نے عرس اعلیٰ حضرت کہاں منانا ہے؟ فیضان مدینہ میں منانا ہے انشاءاللہ. ذوق نعت کی طرف بڑھتے ہیں. آج دوسرا کوارٹر فائنل ہے, اور کوارٹر فائنل میں ہم نے کچھ سیگمنٹس کو تبدیل کیا ہے. پری کوارٹر فائنل کے مقابلے میں 7 مراحل ہیں, 2 مراحل اس میں نئے ہیں, اور دیکھتے ہیں کون سے مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے. سیگمنٹس آپ کے سامنے ہیں, ان سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹس لیں گے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان سے ہم رخصت لیں گے, ان کو تحائف وغیرہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. آپ سب بھی جوش و جذبے کے ساتھ مدنی مقابلے کا حصہ بنے رہیے, اور ہر جواب پر نعروں کی بھی گونج ہو, سبحان اللہ کی بھی صدائیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مدنی اشعار کی تکرار یعنی بیت بازی, اس میں دونوں جانب کی ٹیمیں ایک دوسرے کو اشعار دیں گی اس طرح کہ جو شعر پہلے پڑھا جائے گا اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شعر پڑھنا ہوگا. پہلا شعر میں پڑھوں گا, پھر آپ کو 3 منٹ کا وقت ملے گا, اور آپ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اپنا تعارف بھی کروا دیں اپنا نام کے ساتھ. محمد ستر رضا. ستر رضا, ماشاءاللہ. محمد عادل اتاری. ماشاءاللہ. محمد عظیم اتاری. محمد عظیم اتاری. 2 اسلامی بھائی اس ٹیم میں مجلس آئی ٹی کے ہیں. جی محمد بلال رضا اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد آصف. محمد آصف اتاری, مرحبا. محمد شہباز اتاری. شہباز بھائی ماشاءاللہ. 2 اس میں طلبہ ہیں جامعۃ المدینہ کے, اور دورہ حدیث شریف میں دونوں نہیں, میں وہ خامسہ 5ویں کلاس میں ہیں ماشاءاللہ. اللہ برکتیں دے آپ کو, مفتی اسلام, عالم بعمل بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بنائے. شعر پڑھ رہا ہوں. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا. آپ شعر پڑھیں گے با سے, اور آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کے. یہاں پر آواز نہیں آ رہی, مانیٹر یہاں کا بھی ہمارے حاضرین کا مانیٹر آن کر دیں. بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کے. 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر نہیں چلے گا, 3 منٹ کا کاؤنٹر چلے گا. جی, ٹکڑوں سے ٹے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, بارش جوش کے ساتھ یہاں بھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے. سبحان اللہ. ہر شعر پر سبحان اللہ کی ذکر کی صدائیں ہونی چاہیے. جی, بے. بنا آسماں منزل ابن مریم, گئے لامکاں تاجدار مدینہ. سبحان اللہ, ویری گڈ. پیارے پیارے اشعار مل رہے ہیں سننے کو. گاف, گئے لامکاں. جلدی, اتنا مشورہ نہیں کرنا ہوتا. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں و منکار. سبحان اللہ, کیوں نہ ہو. کاف. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا کیوں پڑھ رہے, کسی سے قرض لے لیا ہے کیا؟ ہاں بھائی, قاف سے شعر پڑھیں گے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. سبحان اللہ. جی, مجھ کو میم.
1 मिनट और मिसले फारस जलजले हो जाएं वहाँ जिक्र आयात विलादत कीजिए। हाँ, जिक्र आयात विलादत कीजिए। दाल 1.5 मिनट बाकी है, अब तक किसी का पल्ला नहीं झुका। अगर ऐसा कोई शेर आया सामने वाले शेर ना पढ़ सके, दाल 2 पॉइंट का ये मुकाबला है, ये वाला मरहला। जल्दी। ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे आज जी। ताज सर बनते हैं ते आपको अकेला कर दिया इन्होंने। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। ये डिपार्टमेंट इनको दे दिया आपने जी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। यहाँ हाजरीन का जो मॉनिटर है इसको जरा बढ़ा दीजिए। कौन नजरों पे चढ़े, काफ। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। सुभान अल्लाह जी। नून जरा बाइक के करीब भी हो जाए। नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। सुभान अल्लाह। मीम आपका वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी शेर पढ़ेंगे आप। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। दोनों टीमों ने किसी को भी पीछे जाने नहीं दिया, और अब तक ऐसा हुआ भी नहीं है मदनी अशार की तकरार में कोई भी। मेरे ख्याल से एक ऐसा हुआ था जिसमें 8 मुकाबलों में से एक बार ऐसा हुआ था कि मदनी अशार की तकरार में एक टीम पीछे रह गई थी, वरना 7 मुकाबलों में कोई पीछे नहीं गया। दोनों टीमों को बराबर इसमें पॉइंट मिलेंगे, और सिलसिला आप देख रहे हैं 2-2 पॉइंट दोनों टीमों के हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड से पर जाएंगे, इससे पहले हाजरीन में से कौन आएगा, स्कोर बोर्ड भी देख लें। 2-2 पॉइंट हो चुके हैं। पहले कोई ना आया हो, जो पहले ना आए हो मदनी अशार की तकरार करेंगे। बापू आप ले लें 2 इस्लामी भाइयों। देखें आवाज कोई ना निकाले, आवाज ना निकालें, सिर्फ हाथ उठाएं। आप आएंगे, आइए इधर आ जाएं। मदनी अशार की तकरार करेंगे। चादरें वगैरह बाद में कर लेना, आ जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। आपका क्या नाम है? अहमद रजा भाई। चलें भाई, पहला शेर। नारे दोसख को चमन कर दे बहारे आरिज, जुल्मते हश्र को दिल कर दे नहारे आरिज। आए हाय हाय, क्या पढ़ने का अंदाज है। जुल्मते हश्र ज़ोएं। क्या हुआ? आप तो हाथ नहीं उठाया था, खड़े ही हो गए थे, पढ़ नहीं पा रहे आप। माइक कौन है इनका जी? माइक बंद है शायद। मदीना माइक खुला है, पढ़े। नहीं पढ़ पा रहे हमारे, क्या नाम बताया था? उस्मान गनी भाई को तोहफा पेश करेंगे। बापू इनको तोहफा दें इमामा शरीफ का। सुभान अल्लाह, इतना जल्दी वो हो गए। अगली बार इनके मुकाबले में भी किसी को लाएंगे, फिर देखते हैं आखिर तक कौन लेके जाता है। उस्मान गनी से कोई करेगा मुकाबला? हाँ, देखा आवाज कोई ना निकाले, जो पहले आया ना हो। आप करेंगे, आ जाए, बापू के पास जाए ना, जाए जल्दी, टाइम कम है। मदनी अशार की तकरार। क्या नाम है? ज़ा से शेर। हसन रजा। ज़ोए से शेर। दोबारा स्टार्ट लेना। दोबारा स्टार्ट करें? नहीं, इन्हीं से कंटिन्यू रखना है। दोबारा लेना। चलो दोबारा कर लेते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सीन। जल्दी। यहाँ पर आकर बहुत सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। वहां से स्टार्ट ले लेना, वहां से स्टार्ट लेना। सीन से पढ़े। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये तो लगता है ज़ौक़े नात में आएंगे। जल्दी वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्मे जिगर दिखलाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन रजा। हसन रजा, माशा। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद मेरे दिल में बसी हो। बापू ने हाथ रख दिया है तो पढ़ने लगे। और याद, फिर अलिफ। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मचे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे। सुभान अल्लाह। कुरान क़ाफ। कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है
عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان بلا اللہ۔ لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ میم میم مدنی منع کتنے سال کے ہیں؟ میرے چاند صدقے آجا ادھر بھی، میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ چلو مان لیتے ہیں پھر یہ میم، جو یہ نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، پہلے پھر کرم ہو گیا یہ ہے۔ چلو پھر کرم ہو گیا، میم سے پڑھ لیں۔ میم سے ہاں میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں تو ہونی چاہیے بھائی، کیا شعر بلا سنا لو رہے ہیں۔ ہم غریبوں کو، جی جی، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، کبھی پے، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں۔ سبحان اللہ، چلیں پے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ اللہ، پھر پے، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ڈالی ڈالی گوچی گوچی ذکر خدا میں کھویا۔ گوچی گوچی کیا ہوتا ہے؟ گونچا گونچا۔ غنچہ غنچہ۔ اچھا، چلیں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی۔ اللہ اکبر۔ چلے بھائی، کتنے سال کے آپ؟ 13 سال۔ 13 سال کے، مگر کمال کر دیا۔ اچھا مقابلہ۔ چلیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے۔ سبحان اللہ بھائی، اب تو ان کے ٹکر کا تو کوئی نہیں ہوگا لگتا ہے۔ در بدر دال، دال آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ آئے ہائے۔ تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود۔ بھائی یہ میں مقابلہ ختم کرتا ہوں، کافی دیر سے چل رہا ہے۔ ان دونوں کو انشاءاللہ امامہ شریف، چادر اور غلاف کعبہ کے دھاگے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں۔ یہ تو ہمارے چیف گیسٹ ہونے چاہیے فائنل میں۔ مدینہ مدینہ، کیا آصف بھائی دیکھ رہے آپ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا، تھکن اتر جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑی زبردست محنت کر کے اسلامی بھائی آتے ہیں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور یہ سلسلہ آپ گھروں میں بھی کر سکتے ہیں، مدنی اشعار کی تکرار کریں، اور آپ کا وقت بھی دیکھیں ذکر و درود میں، نعتوں میں گزرے گا، سفر میں یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرے برے کاموں سے بھی انشاءاللہ، ویڈیو گیمز سے، الٹی سیدھی چیزوں سے بھی انشاءاللہ بچتے رہیں گے۔ فیضان اعلیٰ حضرت، یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ ہم میں ذوق نعت کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذوق کو سلامت رکھے اور مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا در بتایا اور ذوق نعت بتایا کہ کیسے پایا جاتا ہے، کس طرح بڑھایا جاتا ہے۔ سلسلہ جاری ہے، ایک مرحلہ گزر چکا ہے، دونوں ٹیموں کے برابر پوائنٹ ہیں، اور دیکھتے ہیں اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ یہ دوسرا راؤنڈ ہے، حروف تہجی اس کا نام ہے۔ حروف تہجی اردو کے جو الفابیٹس ہیں، جو ورڈز ہیں، الفابیٹس یعنی حروف مفردات، الف بے پے تے، تقریباً 37 ہیں، اور یہ سب کے سب یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایرو کے سامنے جو آئے گا اس سے شعر سنانا ہوتا ہے۔ ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے۔ آپ کی ہیلپ آپ کی ٹیم کا کوئی ممبر نہیں کرے گا۔ ٹیم آئی ٹی اور ٹیم جامعۃ المدینہ ہمارے سامنے ہیں۔ آئی ٹی والوں میں سے پہلے کون آئے گا؟ ہر کسی نے اپنی باری پر آنا ہے اور اسے گھمانا ہے، جو شعر جو حرف آئے گا اس سے شعر سنانا ہے۔ سبتر رضا بھائی بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں کیا آتا ہے۔ 25 سیکنڈ ہوں گے جواب دینے کے لیے۔ کاف سے شعر سنائیں گے آپ۔ حاضرین میں سے بھی کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا، یہاں سے کوئی نہ بولے پلیز۔ کاف۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ سبحان اللہ کی صدائیں تو ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ، بہت اچھا شعر سنایا۔ کون آئے گا؟ ہر ٹیم کے ممبر کو آنا ضروری ہے اور اپنی باری پر اسے گھمائیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے گھمائے تو اور اچھا ہے۔ پڑھ لیا تھا۔ آپ کے لیے آ رہا ہے صاد۔ صاد سے شعر۔
صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بارہ نور کا، سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا شعر سنایا، مشہور شعر ہے۔ کون آئیں گے دوبارہ ٹیم آئی ٹی سے؟ ہر جواب پر 1 پوائنٹ ہے، دونوں ٹیموں نے 1 جواب دے دیا ہے۔ عادل بھائی کے لیے کیا آتا ہے؟ ہے سے شعر سنائیں گے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، انشاءاللہ آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ سبحان اللہ، سرما بھی آپ نے لگایا ہوا ہے، مدینے جانے کی لگتا ہے تیاری کر لی ہے، انشاءاللہ جائیں گے ضرور۔ پھر جواب دے دیا ہے سے شعر سنایا ہے۔ کون آئیں گے؟ آصف بھائی مرحبا، بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اور دیکھیں کون سا حرف آتا ہے۔ جو شعر ایک بار ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پھر کاف آ گیا، کاف سے شعر سنائیں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ بنوں گا یا رب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، درست جواب دے دیا آصف بھائی نے بھی۔ 2 پوائنٹ دونوں ٹیموں کو مل گئے ہیں۔ آخری آپ کی ٹیم کے دونوں کے 1 ممبر رہ گئے۔ کوئی چہرے پہ کوئی ٹینشن نہیں نظر آ رہی، مسکرا رہے ہیں آپ، اچھی تیاری کی لگتا ہے، الحمدللہ۔ آپ کے لیے آ گیا ہے میم سے شعر سنائیں گے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، 18 سیکنڈ ہے شعر۔ پلاؤ بلوا کے جامع الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ پہلے پڑھا تھا بلاؤ پلوا کے، ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے کیا؟ پلاؤ بلوا کے جامع الفت، نبی رحمت شفیع امت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی صدائیں ہوتی رہیں۔ آخری ممبر ہیں، بسم اللہ پڑھ کے سے گھمائیں، دیکھیں آپ کے لیے کیا نکلتا ہے۔ ایسا حرف ہے اس سے کوئی شعر نہیں آتا، ان دونوں سے نہیں آتا، رے اور زے سے۔ اس سے سنا دیں۔ دوبارہ گھمائیں۔ کیا ہو گیا آج؟ یہ کیا الف پہ رکا ہے کہ بلینک پہ؟ اچھا، اگر اس پہ آئے تو کیا کریں گے؟ کچھ ہے کوئی نیا ورڈ؟ انگلش میں شعر سنیں، ایسے ہی پوائنٹ دے دیں گے۔ الف سے سنا دیں آپ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ سبحان اللہ، آمین، ماشاءاللہ، دونوں نے تینوں اشعار درست سنا دیے، کسی نے پوائنٹ ضائع نہیں ہونے دیا۔ 5 پوائنٹ ہیں۔ لگ رہا ہے کہ آج مقابلہ بڑا سخت ہونے والا ہے، ٹیمز بھی بہت مضبوط ہیں۔ ظاہر ہے دوسرا مرحلہ ہے، کوارٹر فائنل ہے۔ حاضرین میں سے کون آئے گا؟ بولے گا، آواز کوئی نہ نکالے، آواز نہیں نکالیں، آپ آ جائیں جلدی سے، بلو کپڑے والے، جلدی آنا ہوتا ہے، سوچ کے آئیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اویس۔ گھمائیں، بسم اللہ پڑھ کے شعر سنانا ہوگا پھر۔ سنائیں گے اس سے شعر، سواد سے آتا ہے؟ نہیں آتا؟ کس سے آتا ہے؟ شین سے آتا ہے؟ سین سے آتا ہے؟ زا سے آتا ہے؟ تو ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ ہاتھ تو وہ اٹھائے نا جس کو آتا ہو۔ آپ سمجھے الف آ جائے گا۔ کس سے آتا ہے؟ نعرہ لگا دے، فیضان اعلی حضرت۔ فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت تو بہت اونچا ہے، نعرہ بھی اونچا ہونا چاہیے۔ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا۔ ان کو قلم کا تحفہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور کون آئے گا جو پہلے نہیں آیا؟ لبیک کوئی بولے گا تو اچھی بات ہے، لبیک بولنا چاہیے، لیکن ابھی آواز نہ نکالے، خاموشی سے صرف ہاتھ اٹھائیں تاکہ ماحول صحیح بنا رہے۔ واہ بھائی، کہاں مدینے جا رہے اتنے تیار ہو کے آئے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مکی رضا۔ مکی رضا، ماشاءاللہ۔ گھمائیں گے بسم اللہ پڑھ کے۔ دیکھیں کیا آتا ہے ان کے لیے۔ شعر تیار کیے کہ نہیں؟ کتنی دیر کی تھی تیاری؟ تھوڑی دیر۔ آپ کے لیے تو بہت آسان آ گیا۔ یہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چاہیے مشکل کو چاہیے۔ سبحان اللہ، انہوں نے شعر درست سنا ہے، ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے۔ تحفہ لے لیں جا کے، مکی رضا تحفہ تو لے لیں، ماشاءاللہ۔ اور کون آئے گا؟
चले आप आ जाएं। सबसे पहले हाथ उठता है इनका, कुछ भी पूछो सबसे पहले हाथ उठता है। भाई क्या खाते हो, हर जवाब आता है आपको, हैं? कैसे ही हाथ उठाते हैं? क्या नाम है आपका? जुनेद अत्तारी। माशाअल्लाह। चले सुनाएंगे ना शेर, ऐसे ही नहीं घुमाना। बिस्मिल्लाह पढ़ के। कितने साल के आप? 10। माशाअल्लाह। जुनेद अत्तारी के लिए कौन सा हर्फ आ रहा है? फिर ये आ गया, ये से सुनाएंगे। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के ना ना, ए हसनैन के ना ना, ए हसनैन के ना ना, सुभान अल्लाह। ए हसनैन के नारा लगा दे जोर से। फैजान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इनको भी तोहफा पेश करेंगे माशाअल्लाह। मदीना मदीना 2 राउंड हो चुके हैं, 2 मराइल से गुजरकर हमारी दोनों टीमें जो हैं कोई भी पीछे जाने को तैयार नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपना अगला मरहला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्कोर बोर्ड भी देख लें, इसके बाद इंशाअल्लाह अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। स्कोर बोर्ड बार बार इसलिए भी दिखाया जाता है कि हमारे नए नाजरीन जो हों वो इससे आगाह हो जाए कि क्या चल रहा है, कितने मराइल हो चुके हैं और कौन कहां पहुंचा है। शुरू करें अपना अगला मरहला, मुश्किल अल्फाज। वहाँ क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिलसिला जारी है और हमें एक मदनी फूल मिला है, इसको मैं ऑन एयर कर देता हूँ कि मदनी मुन्नों को तोहफा देते वक्त हम आम तौर पे ये नियत करते हैं कि इनके वालिदैन की मिल्क है ये। ऐसा ही होता है बापू? तो ये हमारे अपने ज़ाती होते हैं, किसी के नहीं होते, ना कोई और मालिक होता है, इसका मैं खुद मालिक होता हूँ। आम तौर पे चीज़ें जो है तो मेरी नियत, मैंने इनको दिया है, मेरी तरफ से वकील हैं, हमारा ये तय होता है कि मदनी मुन्नों को हम जो भी देते हैं वो उनके वालिदैन वगैरह की मिल्क होता है। जज़ाकल्लाह जिन्होंने हमारी तरबियत ने मदनी मुज़ाकर में ये ज़हन दिया है जी कि जो नाबालिग मदनी मुन्ने होते हैं इन्हें कोई तोहफा दिया जाए तो इनके वालिदैन की मिल्क किया जाए। ये अमीर अहले सुन्नत की तरफ से अता करदा मदनी फूल है। तो इंशाल्लाह उसके बाद से हर सिलसिले के अंदर जो हम मदनी मुन्नों को, नाबालिग मदनी मुन्ने होते हैं उनको जो तोहफा देते हैं वो उनके वालिदैन ही की मिल्क करते हैं। ठीक है। मदनी मुन्ने बहुत ज़ौक़ और शौक़ से सिलसिले में आते भी हैं, देखते भी हैं, और बड़े भी आते हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी यहाँ पर आते हैं और देखते भी हैं। और फीडबैक तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त मिलता है बापू कि जब रात को हमारे सिस्टम पर ये इमेजेस देखी जाती है ना तो समझे ना, थकन जो है वो उतर जाती है कि इतने सारे नाजरीन कितनी मेहनत करके ये बनाते होंगे, कितने कितने दिन लगाते होंगे वो मज़ार आला हज़रत के स्केच बनाने में। तो हमारी बात सुनकर वो, जब मैं ऐलान कर रहा होता हूँ तो जहन में होता है कि अल्लाह करे एक आध कोई बना ले, लेकिन जब देखते हैं तो कई बने हुए होते हैं, 100, 150, कभी 200, इससे भी ऊपर हमें ये स्केचेस मिलते हैं, फिर हम उसमें से सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे नाजरीन जो है बड़े मोहब्बत से आला हज़रत के फैज़ान को लूट रहे हैं और सिलसिले को देख रहे हैं, हमारी दिलजोई भी करते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं और अपने मुफीद मशवरों से भी नवाजते हैं, नवाजते रहा करें। सिलसिला ज़ौक़े नात का 8वां राउंड, 8वां पार्ट आप देख रहे हैं और क्वार्टर फाइनल का दूसरा ये हिस्सा है और तीसरा मरहला हमारा शुरू होने जा रहा है। नाम है मुश्किल अल्फाज। दोनों टीमों को 5-5 लफ्ज स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और उनके साथ उनके माना भी होंगे, लेकिन ऑप्शन के साथ। 3 में से किसी एक को इन्होंने चूज करना होगा। दुरुस्त करेंगे तो पॉइंट मिलेगा, नहीं चूज कर सके, गलत जवाब दिया तो पॉइंट नहीं मिलेगा। 5 पॉइंट हासिल करने का ये मरहला है। आपने जवाब नहीं बताना, सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, ठीक है? शुरू करें। टीम आईटी के लिए कौन सा लफ्ज है पहला? 25 सेकंड होंगे हर जवाब को देने के लिए। बहुत आसान अल्फाज भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं। पहला लफ्ज है हिलाल। जवाब दीजिए, मशवरा भी कर सकते हैं। हिलाल में 3 ऑप्शन है, चेहरा, पानी या चांद। 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 आपने कहा चांद, बताएंगे जवाब सही है कि गलत? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चांद हिलाल का माना है और दुरुस्त जवाब है। शायद बहुत आसान भी था। अगला लफ्ज देखते हैं कौन सा है। 5-5 अल्फाज हैं दोनों टीमों के लिए।
लफ्ज है बार। बार का माना क्या है? आरा, बोझ या लोहा? आप बताएंगे। दुरुस्त जवाब 25 सेकंड में। जी आप ही, पांचों लफ्ज आपसे हैं। बोझ। बोझ, सोच लीजिए कहीं बोझ ना पड़ जाए। 12 सेकंड है। आपने कहा बोझ, बार का मतलब बोझ। 3 ऑप्शन मिलते हैं तो आसानी हो जाती है। 120% है। 120% है, परसेंट ही 100 होता है जब। देखिए इनका जवाब सही है कि गलत? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तीसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज कौन सा है? चमनिस्तान। चमनिस्तान का मतलब बताएंगे? मुल्क, शहर या बाग? नाम तो किसी शहर मुल्क से मिल रहा है, अफगानिस्तान, चमनिस्तान। बताएं कोई मुल्क है, शहर है कि बाग है? क्या माना है? बाग। जी बाग। बाग। देखें इनका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। अगर जवाब दुरुस्त है तो सुभान अल्लाह की सदाएं होंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरुस्त जवाब दिए हैं तीनों अब तक। चौथा लफ्ज, लफ्ज है, क्या है? गुल है, गिल है? ये गुल। अच्छा, गिल है, गुल। गुल बताइए, गुल का क्या मतलब? कांटा, मिट्टी या फूल? फूल। फूल। और अगर इसको गिल पढ़े तो? अभी तो गुल पूछा है तो गुल का अच्छा मैंने फूल। अच्छा इसको गिल पढ़े तो? गिल का क्या मतलब? गिल का माना नहीं, गिल का नहीं पता, लेकिन आपने गुल कहा है, फिल वक्त गुल का। हमने गुल ही पूछा था, लेकिन अगर गिल हो तो गिल का मतलब होता है मिट्टी। लेकिन आपसे गुल पूछा गया था। आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं? इन्होंने कहा फूल। इनका जवाब फिर दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज है इनसे, कौन सा लफ्ज है आखिरी? 5वां लफ्ज स्क्रीन पर। लफ्ज है गर्दू। गर्दू का मतलब बताएंगे? ऑप्शन है मिट्टी या गर्द आलूद या आसमान। इन 3 में से कोई एक इसका मतलब है। अगर आप में से किसी को पता है तो जवाब मत दीजिएगा। बताइए 11, 10। गर्द आलूद। गर्द आलूद आपने कहा। 3 ऑप्शन है आपके पास, मिट्टी, गर्द आलूद, आसमान। देखें इनका जवाब सही है कि गलत? आपका जवाब गलत हो गया है। गर्द आलूद नहीं, बल्कि दुरुस्त जवाब क्या है? गर्दू का मतलब है आसमान। आसमान को गर्दू भी कहते हैं। जवाब आपका गलत हो गया। 5 में से 4 के दुरुस्त जवाब दिए हैं, इसके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हों। और एक पॉइंट बहरहाल अब लूज कर चुके हैं। दूसरी टीम की तरफ चलेंगे। जामियातुल मदीना, आप लोग तैयार हैं? मुश्किल अल्फाज तो वैसे आप लोगों के लिए कम मुश्किल होंगे, मुश्किल किताबें पढ़ते हैं। हमने इस सेगमेंट को खास तौर पे इसलिए भी शामिल किया है कि मालूमात में भी इजाफा हो, और मुश्किल अशआर से ही अल्फाज लिए गए हैं, ताकि आप जब उन शेरों को देखें तो आपको वो शेर आसानी से समझ आए। तैयार हैं आप? देखें इनके लिए कौन सा लफ्ज है पहला। जामियातुल मदीना वाले अब 5 अल्फाज के जवाब देंगे। पहला लफ्ज, लफ्ज है हिज्र। हिज्र का मतलब बोसीदा, जुदाई या सवारी? बताइए, 19 सेकंड है। जुदाई। आपने कहा जुदाई। देखें जवाब सही है कि गलत? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। दूसरा लफ्ज कौन सा है इनके लिए? स्क्रीन पर देखेंगे। लफ्ज है जमजमा। जमजमा का मतलब जमजम शरीफ, पानी या नगमा? हाथ नहीं उठाना, बस जवाब देना है। अब तीनों में से कोई भी दे सकता है। 15 सेकंड है। नगमा। नगमा, सोच लीजिए कहीं गलत जवाब ना हो जाए। आपने कहा नगमा, आपका जवाब सही है कि गलत? बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तीसरा लफ्ज कौन सा है? इसमें मशवरा भी कर सकते हैं जवाब के लिए। जी तीसरा लफ्ज है सितम। सितम के क्या मतलब है? सितम का क्या मतलब है? जुल्म, किश्ती या दिमाग? बताइए, 25 सेकंड है। अलग अलग अल्फाज के माना भी सीखने को मिल रहे हैं। बताइए। जुल्म। जुल्म, ये सेगमेंट आपने ले लिया है जवाब देने का। जुल्म आपने कहा, गलत जवाब भी हो सकता है, कंफर्म कर दीजिए। यही आपने कहा जुल्म। बताइए जवाब इनका फिर दुरुस्त हो चुका है, सुभान अल्लाह।
तीन लफ्ज पूछे गए हैं अब तक, 2 मजीद बाकी हैं। देखें चौथा लफ्ज क्या आता है। चौथा लफ्ज टीम जामियातुल मदीना के लिए लफ्ज है खजा। खजा का मतलब वीरानी, खुशबू या धुआं। बताएंगे आप 25 सेकंड के अंदर खजा का क्या माना है। खजा वैसे एक मौसम भी है, लेकिन यहां किन माना में है? वीरानी। वीरानी कंफर्म है। माशाअल्लाह, बड़े आप कॉन्फिडेंट है इसमें, जवाब जल्दी दे रहे हैं। खजा का माना वीरानी, सेलेक्ट कर लिया जाए। आपका जवाब फिर दुरुस्त है, माशाअल्लाह। आखिरी लफ्ज है जो इनसे पूछा जाएगा। टीम आईटी के पॉइंट्स के बराबर आ चुके हैं। आखिरी लफ्ज कौन सा है? लफ्ज है निहाल। निहाल का मतलब क्या है? मौत, किताब या खुश? कोई यहां से नहीं बोलेगा। निहाल का माना बताएंगे, 15 सेकंड बाकी हैं। मौत, किताब या खुश? मौत। मौत आपने कहा। देखें इनका जवाब क्या है। आपका जवाब गलत हो गया है। एक बार, पहली बार ये गलत जवाब हुआ। निहाल का माना था, देखिए कोई यहां से ना बोले, खुश। निहाल का माना है खुश। आप वहीं रहिए। निहाल का मतलब है खुश करना, इसीलिए नौ निहाल कहते हैं। नौ मौलूद जो होता है वो तंजिया है, जो वो शेर है ना, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, बड़ा निहाल किया। ये एक अंदाज है शायरी का। यहाँ मतलब खुशी है, यानी ये कहना कि आपने तो मुझे खाना नहीं खिलाया, बड़ा खुश किया, तो वो एक अंदाज है। वो जो शेर में जो अंदाज है वो उसका कुछ और है। और जब इस तरह कहा जाए तो तंजिया हो। आला हज़रत के शेर में तंजिया अंदाज नहीं है, याद रखिएगा। उसको माज़अल्लाह तंजिया नहीं कहेंगे। आला हज़रत के शेर में तंजिया नहीं है, वैसे तंजिया तौर पर कहा जाता है। तू जिसके वास्ते छोड़ा या तैबा सा महबूब, बता तो उससे तमारा ने क्या निहाल खुश किया। बिल्कुल। बहरहाल निहाल का माना आपने गलत बताया और दोनों टीम्स फिर एक बार बराबर हो चुकी हैं। एक एक जवाब दोनों ने गलत दिया। स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे। आप में से कोई बताएगा लफ्ज का मतलब? पहले पूछने तो दें, मतलब हाथ उठा लिया। लफ्ज है, हाथ नीचे रखे, अभी तो मैं पूछूंगा। लफ्ज है ईमा। कौन बताएगा? ईमा, आखिर में नून नहीं है, ईमा। बापू ले लें किसी से। विदाउट ऑप्शन है। विदाउट ऑप्शन है आपसे। बापू जल्दी ले लें किसी से। विदाउट ऑप्शन यूं है कि आपको कोई नंबर भी नहीं कटेगा। ईमा का क्या मतलब? इशारा। इशारा। जो जो हाथ उठा रहे थे इनकी तायद करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं इसका क्या मतलब? रोजे जजा। रोजे जजा का क्या मतलब? कौन बताएगा? जी पूछें, बताइए। कयामत का दिन। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें इसका मतलब बताएं। मुहिब। मुहिब, मुहिब का मतलब बापू आप बताएंगे? जी, मुहिब का क्या मतलब? मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला। करने वाला। और महबूब का क्या मतलब? जिससे मोहब्बत की जाए। सुभान अल्लाह। दो जवाब दिए, दो तोहफे दे दें माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीमों के 9-9 पॉइंट्स हैं। सिलसिला जारी है। स्कोर बोर्ड देखते हैं कि 3 मराइल से गुजरकर किस तरह कौन सी टीम कहां पहुंची है। ज़ौक़े नात सीजन 5 का 8वां पार्ट और दूसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है। आईटी और जामियातुल मदीना दोनों के 9-9 पॉइंट हैं। अभी 4 मरहले बाकी हैं। बहरहाल किसी एक ने पीछे जाना है और किसी ने आगे बढ़ना है सेमीफाइनल के लिए। अब बढ़ेंगे अपने अगले मरहले की तरफ। इसका नाम है नसीब आपका। क्या बात आला हज़रत की, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। नसीब आपका क्या होता है? इसमें नसीब होता है, कुछ भी निकल सकता है। कोई तोहफा, कोई सवाल, कोई मदनी चेक, कोई मुकद्दस तहाइफ या कोई टास्क, कुछ भी करना हो सकता है। इनका नसीब है। हो सकता है नंबर पॉइंट कम भी हो जाएं, पॉइंट बढ़ जाएं। देखते हैं क्या निकलता है आपके नसीब। सुरमा तो लगा के आए आप, लेकिन नसीब देखें कैसा है। सिलसिला जारी है। सुरमा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सुन्नत है लगाना, और मैं तंज नहीं कर रहा, मैं खुश हो रहा हूँ कि आपने लगाया, अच्छी बात है। तो सुरमा लगाना चाहिए। सुरमा लगाने से
आंखों का भी भला होता है, और सुरमा सुन्नत के मुताबिक लगाना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक सुरमा लगाने का तरीका भी पूछेंगे किसी से, आप तैयार रहें, ठीक है? आदिल भाई से भी पूछ सकते हैं हम। दोनों टीमों के हर मेंबर ने आना है अपनी बारी पर, और जो टास्क या जो कुछ भी निकले उनका नसीब। टीम आईटी से नहीं बल्कि अब जामियातुल मदीना से शुरू करते हैं। आप यहां पर जरा साइलेंस मोड रखें प्लीज, कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं। आइए, रात में सुरमा लगाना सुन्नत है, दुरुस्त बात यह है, रात में सुरमा लगाना सुन्नत है। यहां आ जाए, यहां आ जाए, मैं खुद खोलूंगा, आप खड़े रहें। आप मुझे बताएं कौन सा बॉक्स लेंगे आप? ब्लैक। ब्लैक, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ निकले और हम आपस में कुछ तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए एक टास्क है, आपने बताना है ये शेर किस बुजुर्ग का है। ये है आपका क्वेश्चन। नाजिशें करते हैं आपस में मलक, हैं गुलामाने शहे अबरार हम। आप बताएंगे ये किसका शेर है। आपकी टीम के मेंबर आपकी हेल्प नहीं करेंगे इसमें, जो निकलेगा आपको बताना होगा, नसीब आपका। बताइए, 25 सेकंड में से 10 सेकंड बाकी हैं। ये किन का शेर है? नाजिशें करते हैं आपस में मलक, हैं गुलामाने शहे अबरार हम। नाजिशें आने फख्र करना। आपका वक्त खत्म हो गया है, जवाब नहीं दे सके। जवाब देते तो 1 पॉइंट मिलता, आपने जवाब नहीं दिया। कोई यहां से कोई बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? आप बताएंगे, सबसे छोटे मदनी मुन, जल्दी खड़े हो जाए। आला हज़रत का। जी, आला हज़रत का। पक्की बात है, सोच लें किसका है? आला हज़रत। आला हजरत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इनको तोहफा पेश करेंगे। आला हजरत का शेर है ये, पाट वो कुछ धार ये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। इस कलाम का ये शेर है। आप पॉइंट ना ले सके जी। टीम आईटी से कौन आएगा? आइए, मरहबा जी। कौन सा बॉक्स लेंगे? सब्ज। सब्ज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए है कुछ सवाल नहीं है, और है ये खुशखबरी। सुभान अल्लाह। अब खुशखबरी में क्या है ये मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे, पेज पलटेंगे तो कुछ निकलेगा। 1 पॉइंट बगैर कुछ किए, वाह भाई। आइए, इनके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं हो। कोई टास्क नहीं मिला, कुछ नहीं, 1 पॉइंट इनका बढ़ गया है। देखें अब क्या होता है, इनके लिए भी पॉइंट निकल सकता है। आसिफ भाई आ रहे हैं, कौन सा बॉक्स लेंगे? ब्लैक और ग्रीन हो चुका है, पिंक। पिंक। आपके लिए एक टास्क है, देखें क्या होता है इसमें। अब इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैं दिखा देता हूं, फिर आप लोग फैसला करें। यह है, सामने वाली टीम एक शेर पढ़ेगी, उस शेर को पूरा करेंगे आप, और अगर दुरुस्त जवाब देंगे तो 2 पॉइंट ले जाएंगे, नहीं जवाब दे सके तो कुछ नहीं। शेर पढ़ेंगे आप जल्दी से, 25 सेकंड के अंदर। पहला मिसरा आप पढ़ेंगे, दूसरा इन्होंने पूरा करना है। आप दोनों के आपस का मामला है ये, जल्दी कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 2 पॉइंट हम पहले दे देंगे इनको। जल्दी जल्दी, माइक में माइक। अलकल्ब शजू वल हम्मा शुजू दिलदार चुना जहां जेरे चुनू। बट अपनी नहीं, ये अरबी का है, लमयाती नजीरू का है जी। पहला मिसरा तो आप सही पढ़े। अलकल्ब शजू वल हम्मा शुजू दिलदार चुना जहां जेरे चुनू। जा जेर चुनू। आसिफ भाई के पास है 25 सेकंड, इन्होंने भी चुनकर शेर दिया है। 25 सेकंड में जवाब देना है, यहां से कोई हाथ ना उठाए। एक बार दोबारा पढ़ें। एक बार फिर पढ़ लें। अलकल्ब शजू वल हम्मा शुजू दिलदार चुना जहां जेर चुनू। वल हम्मू जी, वल हम्मा है, हम्मू है गालिबन। जी जल्दी। कुछ ते भी नहीं है ना, कर नहीं सकते ना कुछ ते। अब पहले कर सकते थे, अभी ये निकल गया। वक्त आपका खत्म हो गया है, आप पूरा करें शेर। अलकल्ब शजू वल हम्मू शुजू दिलदार चुना जहां जेर चुनू। पत अपनी विपत में का से कहूं मेरा कौन है तेरे मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त शेर चुन के लाए, और इनको नहीं पता होता कि ऐसा हो सकता है, हमें ही शेर देना हो। बहरहाल इनके नसीब, फिर पॉइंट नहीं ले सके हैं, लेकिन कुछ कटेगा भी नहीं। आपकी टीम से कौन आएगा? हर मेंबर ने अपनी बारी पर आना है। कौन सा पॉइंट, कौन सा बॉक्स लेंगे? येलो, जोर से बोला करें। आपके लिए कुछ निकला है, देखें क्या है, दिखा दूं, दिल बड़ा रखें।
आपके लिए ये है। अल्लाह अकबर। 1 पॉइंट कम हो गया इनका, ये क्या हुआ? इसी मरहले में लिया था आपने। इस पर सुभान अल्लाह वो कह रहे होंगे जो आपके साथ है ना, जामियातुल मदीना के साथ। सुभान अल्लाह नहीं कहे, इनका दिल ना टूट जाए कहीं। दोनों टीमों से 2-2 आ चुके हैं, तीसरे कौन आ रहे हैं? आइए देखें क्या निकलता है। 4 बॉक्स खुल चुके हैं, ब्लैक, येलो, पिंक और ग्रीन। बताइए। ब्राउन, जोर से बोला करें ना, ब्राउन, ताकि नाजरीन ये ना समझे मैं अपनी मर्जी से खोल दिया। अल्लाह अकबर। आपके लिए भी एक जबरदस्त टास्क निकला है, पूरा करेंगे? आता हुआ तो पूरा करेंगे इंशाल्लाह जरूर। ये है आपके लिए। एक सांस में आज के सारे सेगमेंट के नाम सुनाएं। सेगमेंट के सुनाएंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सांस ले लें आराम से। सुनाएंगे, याद है? आपको हम 3 टेक देंगे, ठीक है? एक बार टूट गया तो दूसरी बार मौका मिलेगा, तीसरी बार इसके बाद नहीं, ठीक है? तो तैयार है आप? सांस ले लें पहले, तरतीब से, अगर आगे पीछे करके 7 हमारे सेगमेंट है, आपने सबके नाम लेने, याद है? तकरार अशआर, मुश्किल अल्फाज। सांस नहीं तोड़ना है, एक सांस में। अच्छा, दोबारा दूसरा हो रहा है। तकरार अल्फाज, मुश्किल अल्फाज। तकरार अल्फाज कौन सा? तकरार अशआर, वो मदनी अशार की तकरार है। शुरू का सेगमेंट मदनी अशार की तकरार। 2 हो गया, लास्ट है, आखिरी। अब नहीं कर सके तो पॉइंट नहीं मिलेगा। मदनी अशआर। सांस टूट गया आपका। चले आप अपनी जगह पे जाएं, कोई बात नहीं जी। अच्छा ये मैं पूरा करूं? नहीं करो यार, ऐसा मेरे साथ नहीं करो। नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा। मैं कोशिश करता हूं, आप में से कोई करेगा? मदनी अशार की तकरार, हुरूफ तहज्जी दुरुस्त कीजिए, नसीब आपका, सोच समझकर। सांस रुक गया। मैं सांस रुक गया, याद तो है मुझे, लेकिन मेरा सांस रुक गया। आपको एक बार चलो आप करो ना बापू। नहीं आप करें ना, आप तो आप मुझे कह रहे करवा रहे ना, आप करें भाई। कौन रह गया? आप ऐसा ना करें, मेरे को इम्तिहान में ना डालें। चले ना, एक बार और कोई है जो करेगा? आप एक बार ट्राई तो करें। ना करो यार, आप बताएंगे कौन? आप बताएंगे, बताएं जल्दी बताएं। 7 सेगमेंट आज के। मदनी अशार की तकरार, हुरूफ ताजी, मुश्किल अल्फाज। सांस टूट गया, चलो जल्दी। मदनी अशार की तकरार, दुरुस्त कीजिए, अल्फाज मायने, मुश्किल अल्फाज। सांस तो टूट गया। इनको अशफाक भाई, इनको एक बार और मौका दें। मुश्किल अल्फाज, हुरूफ ताजी, दुरुस्त कीजिए। सांस टूट गया। सांस रुका हुआ है। सांस रोका हुआ है, चलो बैठ जाओ। नहीं रोको। अच्छा चले, आपको दोबारा मौका देते हैं। हाँ याद है? चलो कोई बात नहीं, ये कोई भी पूरा नहीं कर सका, बहरहाल नंबर नहीं मिलेगा। कौन आएगा आखिरी आपकी टीम से? हो गए, सब हो गए, 6 के 6 हो गए हैं इस मरहले में। और सबके नसीब जो है, एक आईटी वाले रह गए, मुझे बताया। सब आ गए, कौन रह गए बताएं? सब्तर रजा आ गए, आप नहीं आए शायद। अच्छा, अजीम भाई नहीं है, सब आ चुके हैं। बहरहाल सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है, 3 मराइल हो चुके हैं। आदिल भाई नहीं है ना? आदिल भाई आ जाए। तो भाई आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार? चले, कौन से बॉक्स हो गए? ये रह गए, एक ब्राउन और एक ब्लू। इधर आ जाए, सामने आ जाए। ब्राउन ये है जी, सॉरी ग्रे ये हो गया। अब आपने इतना कंफ्यूज कर दिया, मैं इसको ब्राउन कह रहा हूँ। इसमें से ये दोनों इसमें से देखें क्या निकलता है आपके लिए। अल्लाह अकबर। आपने पहले एक नंबर कम करवाया था जी, अब आपके लिए है सुभान अल्लाह खुशखबरी। अब देखें इसमें क्या निकलता है, जरूरी नहीं है पॉइंट ही हो। मदनी चेक हुआ, दुरूद शरीफ पढ़े आप, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। मदनी चेक, आइए चेक लेने चलते हैं। मदनी चेक देंगे इनको। इतना बड़ा चेक नहीं कि आप दोनों आए लेने के लिए। बड़ा नहीं है, फैजान आला हजरत में मिल रहा है आपके लिए, आपका नसीब। मदनी चैनल के नाजरीन, स्कोर बोर्ड देखते हैं। दोनों टीमों के इस मरहले के बाद बराबर नंबर हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं है। 9-9 पॉइंट हो चुके हैं, 3 मरहले हो चुके हैं। चौथे मरहले की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या होता है। दुरुस्त कीजिए में इन्होंने कुछ दुरुस्त करना होता है, किस अंदाज से करेंगे। आइए इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। फैजान आला हजरत, फैज़ रज़ा। वहाँ क्या बात आला हजरत की,
हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। दुरुस्त कीजिए, मैं मेरे सामने एक पजल बॉक्स होगा और इस पे अशार इन्हें स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। वो अशार इन्होंने लगाने हैं कम से कम टाइम में। जो टीम कम टाइम में अशार पूरे करेगी वही 2 पॉइंट ले सकेगी, और अगर बराबर टाइम हुआ तो ये कोई करिश्मा होगा और दोनों टीमों को पॉइंट दे दिए जाएंगे। पहले मजलिस आईटी को मौका देते हैं। तैयार हैं आप लोग? जी जी। शेर देखेंगे स्क्रीन पर, फिर फैसला करें कौन आता है। टीम आईटी का शेर है, हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम, हम जमाले खुदा देखते रह गए। शेर याद है आपको? नहीं, ये स्क्रीन पे रखें। स्क्रीन पर नहीं रहेगा, लगाने वाले तो वैसे पीट किए हुए होंगे। हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम, हम जमाले खुदा देखते रह गए। आ जाइए, कौन आ रहा है? आइए, आपका वक्त शुरू होता है अब से। हुस्न खैरुल वरा में खुदा की कसम, हम जमाले खुदा देखते हैं, हम जमाले खुदा देखते हैं, जमाले खुदा, जमाले खुदा देखते देखते रह गए। इन्होंने कम से कम टाइम में शेर पूरा करना है। खैरुल वरा में खुदा की कसम, 25 सेकंड हो चुके हैं, बहुत स्पीड में हाथ चल रहा है। उसने खैरुल वरा में खुदा की कसम। अल्लाह अकबर, देखते रह गए। सुभान अल्लाह। 33 सेकंड में इन्होंने शेर पूरा कर लिया है। अल्लाह माशाअल्लाह। देखें हुस्न खैरुल वरा, क्या बात है भाई। हम हुस्न खैरुल वरा में कोई गलती तो नहीं है? नहीं। हाय हाय हाय, सुभान। इनके लिए जोर से सुभान अल्लाह की साथ। इतना तेज अब तक के मुकाबलों में पहला ये इस्लामी भाई हैं जिन्होंने इस तरह किया है। माशाअल्लाह, क्या बात है। इनको तो तोहफा भी मिलना चाहिए। देखिए, अब यहाँ से कुछ और करिश्मा हो जाए। अब इनके लिए शेर दिखाया जाएगा स्क्रीन पर और ये पूरा करेंगे टीम जामियातुल मदीना वाले। कुछ मुश्किल शेर भी था इनके पास। हाँ, इनके लिए कुछ आसान है शेर, वैसे बराबर ही है। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। आप में से कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आसिफ भाई जल्दी। आप लोग एक तो मदनी मशवरा बहुत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। आप आएंगे? एक मिनट। एक शेर याद है आपको? जी सुनाए। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो मदीने में रहे। जिंदा रहना हो तो मदीने में। आपका वक्त शुरू होता है अब से। इतना स्पीड में लगा रहे हैं, जल्दी में गलती होती है। दो पॉइंट का सवाल है, सेमीफाइनल में पहुंचना है। 20 सेकंड हो चुके हैं, सिर्फ 12 सेकंड बाकी है। अल्लाह, आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया है और आप रोक दे। इतना स्पीड में चल रहे थे आप। कोई बात नहीं, पूरा भी करेंगे तो पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा नहीं करवाते। आपको खाली खाली नहीं थकाते। आप अपनी जगह पर जाएं। माशाअल्लाह, आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन बहरहाल इस मरहले में इन्होंने इतना टफ टारगेट था, 33 सेकंड पूरा करना बहुत मुश्किल था, तो इनको पॉइंट इसमें नहीं मिलेंगे। बहरहाल सिलसिला जारी है और 4 मराहिल से गुजरकर हमारी टीम जामियातुल मदीना 9 पॉइंट पर है, मजलिस आईटी 11 पॉइंट पर है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आइए कुछ देर कॉल्स लेते हैं, एक वीडियो भी चलाते हैं और इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। आइए आसिफ भाई, आदिल भाई, कुछ कलाम आला हजरत भी सुनाए और नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। फैजान आला हजरत इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स, स्कोर स्कोर बोर्ड देखें, 9 पॉइंट हैं जामियातुल मदीना वालों के, 11 पॉइंट है आईटी वालों के। कुछ कॉल्स दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह वीडियो चलाएंगे। कॉल सुना दीजिए। क्या तालिया है, मेरी मद्दी गुजारिश है, आवाज बढ़ा दीजिए। सलाम सुना दे मसलके आला हजरत सलामत। माशाअल्लाह। अगली कॉल। फैजान आला हजरत का कलाम था कि अहमद रजा क्या बात है तेरी, ये उनकी मनकबत है, अगर हो सके तो पढ़ दें प्लीज। माशाअल्लाह। अगली कॉल।
عرض خدمت یہ تھی کہ امام اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چند اثار اگر سنا دے تو بہت مہربانی آپ کی۔ ماشاءاللہ. اگلی کال. ہماری جو آج کی ویڈیو ہے جو ہمارے ناظرین ہمیں بھیجتے ہیں، اگر آپ کلام رضا پڑھ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو 00923111013082 پر بھیج دیجئے. ہم انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو اپنے ویور کی چلائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں آج کس خوش نصیب کے پڑھے گئے کلام رضا کو شامل کیا جا رہا ہے. تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روزانہ ہم ایک ویڈیو چلاتے ہیں سلسلے میں، اور اب کچھ دیر چند اشعار کلام اعلیٰ حضرت کے سنتے ہیں، کچھ نعرے بھی لگائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اللہ نے چاہا تو اپنے مقابلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطل میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمعے باطل میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کرے جا چھڑ گیا، تیری انگلی اٹھ گئے مہکا کرے جا چھڑ گیا. اللہ 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 مومن کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کیا پھر گیا. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں
سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا اللہ 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 جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اللہ 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 عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا عرش پر دھومے مچے عرش پر دھومے مچے عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا پر پڑ رہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اللہ 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 ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا لگاتے ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کیا شان ہے میرے آقا کی بولو سبحان اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا گئے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے
جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے خسار کا عالم کیا ہوگا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے بڑی شان کیا شان ہے میرے آقا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن زبان تمہارے لیے بدن میں ہی جان تمہارے لیے ہمیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنے یہ بے خبری کہ کھلک پھیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے کون دیتا ہے دینے کو منہ ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے سارے بولو ہمارے بولو ہمارے بڑی شان والے فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا مدنی چینل کے ناظرین مدنی مقابلہ جاری ہے ذوق نعت سیزن 5 کا دوسرا کوارٹر فائنل سیمی فائنل میں جانے کے لیے تیاری ہے کسی ایک ٹیم کی اور اسکور آپ دیکھ رہے ہیں 9 پوائنٹ ہیں جامعۃ المدینہ کی ٹیم کے آئی ٹی والوں کے 11 پوائنٹ ہیں اور مختصر محفل کے بعد کچھ کالز ہم نے لی ویڈیو بھی چلائی اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف آپ جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہیں نا ذرا جواب دیجئے فیضان اعلیٰ حضرت غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ہمارے اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں پہلا شعر یعنی مطلع پڑھتا ہوں اور سامنے والی ٹیم کے ممبر مقطع پڑھتے ہیں مطلع کسے کہتے ہیں پہلے شعر کو اور مقطع آخری شعر کو دونوں یاد ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات ہوتا بھی ہے اور اب دیکھیں گے کہ کس کی کیسی تیاری ہے ہر باری میں ہر اسلامی بھائی اپنی باری کے 3 اشعار کے مقطع پڑھیں گے تیار ہیں آپ 9 پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹیم بہت آگے بڑھ جائے کوئی پیچھے رہ جائے اس لیے بہت اچھی تیاری ہونا اس میں ضروری ہے ہر شعر کے پڑھنے کے لیے 10 سیکنڈ ملیں گے آپ کو مقطع آپ پڑھیں گے میں پڑھوں گا مطلع شعر ہے تیار ہیں آپ
आईटी वालों के पहले मेंबर से, इस्लामी भाई से शुरू करते हैं। सब्तर रजा भाई, घबराए हुए क्यों हैं आप? पहला शेर, जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरतें 8 पहर तकती हैं रास्ता तेरा। अब हसन मनकबत ख्वाजाए अजमेर सुना, तब पुरजोश है रुख्ता नहीं खामा। सुभान अल्लाह, हर जवाब पर सुभान अल्लाह की सदाएं हों। दूसरा, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। ए हसन फिरदौस में जाए जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। सुभान अल्लाह। तीसरा शेर, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुलें रंगी रजा, या तूती है नगमा सिरा, हक है के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीन शेर हर इस्लामी भाई से पूछे जाएंगे, जवाब देने पर हर जवाब पर 1 पॉइंट मिलेगा। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। टीम आईटी से 1 पूछ लिया, अब आप तैयार हैं? इसमें मशवरा नहीं होगा, हेल्प नहीं कर सकते। तैयार हैं आप? आपसे 3 शेर पूछे जाएंगे, आप देंगे जवाब। पहला शेर, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मक्ता पढ़ेंगे। गौर से सुन दो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। दूसरा शेर, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। क्यों रजा कुर्ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। सुभान अल्लाह। तीसरा शेर, गो जलीलो खार हूं कर दो करम, पर सगे दरबार हूं कर दो करम। मक्ता पढ़ेंगे आप 10 सेकंड के अंदर। हर मेंबर से 3 सवाल होंगे, 4 सेकंड रहते हैं आपके पास। वक्त खत्म हो गया, जवाब नहीं दे पाए आप। अल्लाह करके तौबा फिर गुनाह करता है जो, मैं वही अत्तार हूं कर दो करम। 3 सवाल आपसे पूछे गए, तीनों हो गए ना? आपने 2 के दुरुस्त जवाब दिए, माशाअल्लाह। हर जवाब पर 1 पॉइंट है। आप तैयार हैं? टीम आईटी, दूसरे इस्लामी भाई आदिल भाई पढ़ेंगे, आप मक्ता, मैं पढ़ूंगा मतला। जवाब देने के लिए 10 सेकंड होंगे। पहला शेर है, कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। यही कहती है बुलबुले बागे जिना, कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफे शाह हुदा, मुझे शौक़िए तबे रजा की कसम। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा शेर पढ़ा आपने। दूसरा शेर है, शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। तकदीर में खुदाया लिख दे फ़कत मदीना, तकदीर के खुदाया। 10 सेकंड में पढ़ना है, दोबारा कोशिश कर लीजिए जल्दी, आप नहीं पढ़ सके, वक्त खत्म हो गया। अत्तार की दुआ है तकदीर में खुदाया, लिख दे फकत मदीना सरकार का मदीना। दूसरा नहीं पढ़ सके। तीसरा शेर देखें जवाब देते हैं कि नहीं। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखें मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह, आपने जवाब दुरुस्त दिया और आपने 2 पॉइंट इसमें हासिल किए हैं। तीसरे का जवाब नहीं दे सके। आप तैयार हैं आसिफ भाई? आप पढ़ेंगे मक्ता, मैं पढ़ूंगा मतला। शेर है, आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाएं तो अजब क्या। मक्ता 10 सेकंड है आपके पास। सेहरा में अगर फूल खिलाएं तो अजब। पूरा शेर, पहला मिसरा। वो हुस्न दो आलम है अदीब उनके करम से, सेहरा में अगर फूल खिलाएं तो अजब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरा शेर देखिए जवाब दे पाते हैं कि नहीं। शेर है, ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, साथ। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीसरा शेर देखे पूरा करते हैं कि नहीं। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ये चाराए दिल दर्द हसन की भी दवा हो। शेर पूरा करेंगे, पहला मिसरा। ये चाराए दिल दर्द हसन की भी दवा हो। दुरुस्त जवाब देंगे, पहला मिसरा पढ़ेंगे तो। आपका वक्त खत्म हो गया है, जवाब नहीं दे पाए। दे डालिए अपने लबे जहां बख्श का सदका, ए चाराए दिल दर्द हसन की भी दवा हो। 3 में से 2 के दुरुस्त जवाब दिए हैं आपने भी और 2 पॉइंट हासिल किए हैं। आखिरी मेंबर रहते हैं, आप तैयार हैं? मशवरा करे बगैर अजीम भाई जवाब देंगे।
पहला शेर है, आपकी निस्बत ए नाना ए हुसैन है बड़ी दौलत ए नाना ए हुसैन। 10 सेकंड है आपके पास मक्ता पढ़ने के लिए। 4 सेकंड बाकी हैं, जल्दी कीजिए। आप जवाब नहीं दे पाए, आय हाय हाय, हर वली का वास्ता अत्तार पर कीजिए रहमत ए नाना ए हुसैन। दूसरा शेर पढ़ रहा हूं, आप देखें जवाब दे पाते हैं कि नहीं। शाहे वाला मुझे तैबा बुला लो, तैबा बुला लो मुझे तैबा बुला लो, ड्यूड़ी का अपने कुत्ता बना लो, कदमों से अपने मुझको लगा लो। मक्ता पढ़ेंगे आप, 10 सेकंड है आपके पास। बुलंद आवाज। नूरी ये मुस्तर ये तेरा सनागर। आपका वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर, आप जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। तीसरा शेर देखें, इसका मक्ता पढ़ते हैं कि नहीं। दिल मेरा जी, ये आपने, ये नूरी मुस्तर तेरा सनागर और इसका घर बर हो हाजिर दर, अपने गदागर को दर पे बुला लो, शाह बुला लो मुझे आका बुला लो। तीसरा शेर देखें, आप पूरा करते हैं कि नहीं। मक्ता, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। जल्दी, 10 सेकंड है आपके पास। आपके पास वक्त कम हो रहा है, 2 सेकंड बाकी हैं। अल्लाह अकबर, वक्त खत्म हो गया, एक भी जवाब दुरुस्त नहीं दिया। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, गुलशने जन्नत घर उसका हो गया। बहरहाल तीनों के जवाब नहीं दिए, एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आप तैयार हैं? आपसे होंगे 3 शेर, मतले आप पढ़ेंगे मक्ते। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। पढ़ें, 10 सेकंड हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, 2 सेकंड बाकी है, नहीं पढ़ पा रहे। जुमिले कादरी उठो। नहीं नहीं नहीं, आप जवाब नहीं दे सके। मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। इतना मुश्किल है, इतना आसान था, मुश्किल नहीं था। दूसरा शेर, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। तीसरे शेर का देखें मक्ता पढ़ते हैं कि नहीं। शेर है, हुजूरे काबा हाजिर हैं, हरम की खाक पर सर है, बड़ी सरकार में पहुंचे मुकद्दर यावरी पर है। आपके पास 10 सेकंड है, बड़ा मशहूर मक्ता है, इतना सोचने का नहीं है। 7 सेकंड है, 4 सेकंड है, जल्दी। मदीने का बुलावा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं बता सके। हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। बड़ा मशहूर और बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला मक्ता, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। दोनों टीमों ने इस मरहले में कितने कितने पॉइंट हासिल किए हैं, ये हम कुछ देर में स्कोर बोर्ड में देखेंगे। आइए स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो टोटल स्कोर आपके सामने है, लेकिन किसने कितने दुरुस्त जवाब दिए देखें। 9 पॉइंट का ये मरहला था। टीम जामियातुल मदीना ने 5 दुरुस्त जवाब दिए और टीम आईटी ने भी 5 दुरुस्त जवाब दिए। कुल मिलाकर दोनों टीमों के, आईटी वालों के 16 और जामियातुल मदीना वालों के 14 पॉइंट हैं। और अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी मरहले की तरफ, जिसमें सोच समझकर जवाब देना है और देखें क्या होता है। इसमें फैसला हो जाएगा कौन सी टीम आगे बढ़ रही है। आइए इसे शुरू करते हैं। फैजान आला हजरत। वाह क्या बात आला हजरत की, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने सवाल किया था आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़ों के हवाले से कि आपने किस नन्ही सी उम्र में रोज़े रखना शुरू कर दिए थे, और जवाब है 7 साल की उम्र में। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से 12 के नाम यूसुफ बापू लेंगे और फिर उनमें से किसी एक के लिए कुरान दाजी का सिलसिला भी होगा। जी बापू जी, हमारे पास जो नाम है उनमें से 12 नाम ये हैं। रिजवान डेरा गाजी खान बिनते शब्बीर अत्तारिया चीचा वतनी, बिनते अकबर अत्तारिया पिशावर, जोहेब इम्तियाज़ इस्लामाबाद, हसीब अत्तारी आरिफ वाला, मोहम्मद सलीम नक्शबंदी गुलजार तैयबा सरगोदा, इनामुल्लाह अत्तारी उकाड़ा, बिनते सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा बुखारी लियाकतपुर, बिनते रियाज टेक्सला, बिनते अब्दुल कय्यूम अत्तार नगर टंडोजाम, बिनते अली अत्तारिया बाबुल मदीना कराची, सैयद इफ्तिखार अली गुजरात,
इन 12 के दरमियान इंशाअल्लाह कुरानदाजी होगी और जिनका नाम निकलेगा उन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तबरुकात मदीना पेश की जाएंगी। सुभान अल्लाह। कुरानदाजी आप ही कर लें, वहीं कर लें, वहीं कर लें, और कुरानदाजी में जिसका नाम है वो आप बताएं। जिसका नाम निकल रहा है इनामुल्लाह अत्तारी ओकाड़ा, इन्हें माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तबरुकात मदीना रवाना किए जाएंगे। इनामुल्लाह अत्तारी ओकाड़ा, इनामुल्लाह अत्तारी ओकाड़ा, इनको इंशाअल्लाह ताइफ पहुंचाए जाएंगे। बहुत मुबारक हो ओकाड़ा के इस्लामी भाई को, आपके लिए ये तोहफा निकला है। और मदनी चैनल के नाजरीन, अब आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे। सोच समझकर आपने बैल बजानी है, जो बैल बजाएंगे वही शेर पूरा करेंगे। हर शेर पर 1 पॉइंट मिलेगा और जो ज्यादा नंबर लेंगे, पॉइंट लेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अब है फैसला, सेमीफाइनल में कौन जा रहा है। बैल चेक कर लीजिए, सबकी बैल सही है, किसी की खराब तो नहीं है। आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, यहाँ बिल्कुल खामोशी तारीफ फरमा दें और सिर्फ सुभान अल्लाह की सदाएं हों और कुछ ना हो। सुरमे के हवाले से कुछ मदनी फूल भी ले लीजिए। जो मैंने सुरमा सुन्नत है, इसकी तफसील सुन लीजिए। सुरमा रात को लगाना सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त सुरमा लगाते थे, दोपहर में सोते वक्त नहीं। सुन्नत यही है कि रात को सोते वक्त सुरमा लगाए। दिन में सुरमा लगाना जुमे की नमाज के लिए, ईदैन के लिए सुन्नत है, यानी जुमे की नमाज हो या ईदैन हो तो दिन में भी सुन्नत हो जाएगा। इसी तरह आशूरा के लिए भी सुन्नत है और रोजाना शब को, रोजाना रात को सुरमा लगाना सुन्नत है। नियत कर लें कि इंशाअल्लाह सुरमे की सुन्नत को भी जिंदा करेंगे। मिरातुल मनाजी से मैंने ये पढ़कर आपको सुनाया है, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। और अब पढ़ेंगे पहला शेर। 10 शेर हैं, आप तैयार हैं? किसी किस्म की घबराहट तो नहीं है? सेमीफाइनल में जाना है इंशाअल्लाह। 10 अशार हैं और किसी एक ने बहरहाल पीछे जाना है। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं इस मामले में कि कौन जाता है। दोनों टीमें हमारी जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त हैं, मुकाबला भी अच्छा करते हैं। और पिछले मुकाबले में जो टीम आगे बढ़ी है, मदनी नामात की टीम, ये वही थी जो पिछले मुकाबले में भी पीछे रह गए थे, लेकिन आज उनके नसीब आगे बढ़ गए पिछले मुकाबले में। आज देखिए क्या होता है, आप में से कौन आगे बढ़ता है। पहला शेर है, आपसे बस। टीम जामियातुल मदीना वालों ने आपसे बस में बस कर दी। बहुत जल्दी की आपने, शायद बता पाए शायद ना बता पाए। बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। आपसे बस आप ही को मांगता हूँ या नबी, आपका अदना सनागर सब्ज गुंबद देखकर। शेर दुरुस्त पढ़ें अगर ये है तो। आपके पास 5 सेकंड है। आपसे, आप ही से, आप ही को मांगता है। शेर क्या है, शुरू से पढ़ें, एक बार सही से पढ़ लें। आपसे बस, आप ही से, आप शेर क्या? आपसे बस, ये तो मैंने पढ़ दिया। आपसे बस आप ही को मांगता है या नबी, आपका अदना सनागर सब्ज गुंबद देखकर। सब्ज गुंबद देखकर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 पॉइंट की कमी है और जामियातुल मदीना वाले इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा शेर है, देखिए कौन पूरा करता है। उन्हें जाना जी, इतना क्लोज, दोनों ने हाथ रखा हुआ था कि क्या आता है। बहुत क्लोज है, अगर क्लोज है और बिल्कुल सेम है। रिप्ले की तरफ बढ़ेंगे, चलें भाई, दुरूद पाक हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बताएंगे कौन पहले, किसने पहले बैल बजाई थी, और रिप्ले में पता चलेगा। अगर बिल्कुल क्लोज हुआ तो फिर शेर बदल देंगे। दूसरा शेर है ये, क्या फैसला हो रहा है? किसी फ्रेम में तो कोई पहले होगा, कुछ तो फर्क होगा, देखें। दोनों ने बराबर बजाई है, लेकिन एक टीम की बैल जो है ना वो ज्यादा तेज बज रही है, यानी वो तीनों ने बजाई है, यहाँ 2 ने बजाई होगी, फिर भी आपको नहीं देंगे। जामियातुल मदीना वाले, आईटी वाले, दोनों ने बराबर बैल बजाई। इस शेर को दोबारा करते हैं।
शेर है, या इलाही, नहीं बजा रहे, या इलाही जब, चले भाई, अब किसने पहले बेल बजाई है बताएं। दोबारा रिप्ले की तरफ बढ़ेंगे, सेम हो सकता है फिर पिछली बार की तरह हो। फिर दुरूद पाक पढ़ें, सल्ले अला नबीना सल्ले अला। टीम जामियातुल मदीना आप पूरा करेंगे, जामियातुल मदीना वाले, मदीना आसिफ भाई आपने पहले, आपका टाइमर चल गया है, फैसला हुआ है आपके लिए। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सलीम कहने वाले गमजुदा। देखिए मेरे मुरादी शेर को पढ़ना है, जब से बहुत है, आपने जल्दबाजी की दोनों ने। आपके पास 5 सेकंड है। मुझे तो नहीं करना, जल्दी बोलो, मुझे तो नहीं करना। या इलाही जब आपका वक्त खत्म हो गया है और आपने कोई भी शेर पूरा नहीं किया ना, कौन सा पढ़ा? या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। आपने शेर पढ़ा और आपका जवाब, चूंकि मेरी मुरादी शेर पढ़ना होता है और ये जो जवाब था ये मेरा मुरादी नहीं था, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा बल्कि एक पॉइंट कम हो जाएगा। शेर था, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, दौलते बेदारे हुस्ने इश्के मुस्तफ़ा का साथ। एक पॉइंट कम करवा दिया जो पहले लिया था, जल्दबाजी में ये होता है, सोच समझ के बैल बजानी है। तीसरा शेर पढ़ूंगा, शेर है नूरी, नहीं बजाएंगे नूरी पे, नूरी चादर जामियातुल मदीना, बैल जल्दी बजाई है, नूरी चादर। 20 सेकंड बाकी हैं, जल्दी कीजिए, बैल तो जल्दी बजाते हैं, शेर जल्दी नहीं सुनाते। नूरी चादर तनी है काबे पर, बारिश अल्लाह के करम की है। आपने शेर सोच लीजिए, यही है नूरी चादर में, दूसरा तो नहीं है, वो नहीं है नूरी चादर पे महफिल तनी नूर की, अच्छा वो नहीं है, अच्छा वो नूरी महफिल पे चादर है। आपने कहा नूरी चादर तनी है काबे पर, बारिश अल्लाह के करम की है। इस बार फिर आपने जल्दी की थी और इस बार जवाब दुरुस्त हो गया है। 3 शेर हो चुके हैं और फैसला अभी तक कोई नहीं हुआ, कौन आगे बढ़ता है। चौथा शेर, न आसमान, जी पहले किसने बेल बजाई है? एवरीवन इज कंफ्यूज, कौन पहले, जी समझ नहीं आ रही पहले किसने बेल बजाई है, फिर रिप्ले देखेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जामियातुल मदीना जी शेर पढ़ें। न आसमां को यूं सरकशीदा होना था, हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था। सोच लीजिए, ना आसमान से और शेर नहीं आते। हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था आपने पढ़ा और इस बार भी आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जामियातुल मदीना वाले 4 अशार हो चुके हैं और अब दोनों के पॉइंट बराबर हैं। 6 शेर बाकी हैं और अब देखें क्या फैसला होता है। 5वां शेर है, मदीने हमें, फिर बराबर सेम टाइम में बेल बजा रहे हैं। दोनों टीमें जो हैं एक दूसरे को भरपूर टक्कर दे रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी रिप्ले दिखाएंगे कि किसने पहले बेल बजाई है, उसी की तरफ हो सकता है पॉइंट भी चला जाए। जी रिप्ले दिखाया जाए। अल्लाह अकबर, दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं जब बेल बजती है। पहले एक आध फ्रेम कोई, दोनों ने बराबर बेल बजाई है। इस बार ये शेर कैंसिल करके अब दोबारा दूसरा शेर पढ़ेंगे। देखो उधर ध्यान दो, देखिए कौन पढ़ता है। 5वां शेर है ना ये, क्या कह रहे हैं आप? मदीने हमें ले गया था। नहीं हो गया ना वो तो, ये तो कैंसिल हो गया। 5वां शेर दोबारा पढ़ेंगे। शेर है, नहीं जानता। टीम जामियातुल मदीना ने पहले बेल बजाई है, नहीं जानता पे। हो सकता है आखिर में कह दे मैं नहीं जानता, तो
17 सेकंड। कहका नहीं लगाएगा कोई, कहका लगाया है तो इससे तौबा कर लें। 10 सेकंड बाकी हैं, जल्दी कीजिए, एक पॉइंट कम ना हो जाए। 6 सेकंड बाकी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नहीं जानता मैं मदीने के आदाब। आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया है, आप कंफ्यूज भी लग रहे हैं, शायद आप पहुंच नहीं पाए या पहुंच गए। नहीं जानता मैं मदीने के आदाब, मदीने में कैसा सुरूर। आपका वक्त खत्म हो चुका है, शेर दुरुस्त नहीं पढ़ सके हैं, बैल जल्दी बजाई। आखिर में कह रहे हैं हाल से के नहीं जानता। शेर था नहीं जानता ये मदीने के आदाब, ये तेरा है तेरा बुरा या भला है। अमीर अहले सुन्नत का शेर था, दुरुस्त जवाब नहीं दे सके, शेर गलत हो गया, जवाब न देने पर 1 पॉइंट कम हो गया है। 5 शेर हो चुके हैं। छठा शेर, जामियातुल मदीना वाले 1 नंबर पीछे हैं। छठा शेर पढ़ रहा हूं, शेर है फिर मुयस्सर हो। टीम जामियातुल मदीना ने एक बार फिर जल्दी की है, शेर पूरा करेंगे 22 सेकंड के अंदर। मदनी मशवरा जारी है, जल्दी कीजिए। फिर मुयस्सर हो। फिर मुयस्सर हो मुझे काश वकूफ़ अराफात, जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखूं। जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखूं, जवाब दुरुस्त हो गया है। 6 शेर हो चुके हैं, दोनों टीमें अब फिर बराबर पॉइंट्स पर आ चुकी हैं। 7वां शेर है, देखिए कौन पूरा करता है। शेर है दिन लहव। फिर सेम टाइम में शायद बजाई है बैल, किसी को भी शायद ये ना मिले। एक बार जी बताइए, हमारी मजलिस देख रही है, फैसला करेंगे, नहीं हो सकेगा तो शेर चेंज करेंगे आज। जी जामियातुल मदीना पढ़ेंगे आप शेर। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। दिन लहव से यही शेर है। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और आपका पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। कितने शेर हो गए? 7 शेर हो चुके हैं और टीम जामियातुल मदीना अब 1 पॉइंट आगे बढ़ गई है। 3 शेर हैं, इसमें फैसला होना है कौन आगे बढ़ता है। शेर है फजले। एक लफ्ज सुनकर बैल बजा दी है, बहुत जल्दी की है, सोच समझकर शायद फैसला नहीं किया। फजले क्या हो गया आपको, जल्दी कीजिए। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। आपने कहा फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, चाहे तो बदल दें, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। 2 सेकंड बाकी हैं। आपने शेर पढ़ा मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, और एक बार फिर आपका जवाब गलत हो गया है। ये शेर यूं नहीं था, ये शेर था फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। आपका पॉइंट फिर कम हो गया है और अब 2 शेर बाकी हैं और दोनों टीमें बराबर हैं। किसने आगे बढ़ना है अब तक फैसला नहीं हो सका। नवा शेर पढ़ रहा हूं, देखे कौन पूरा करता है। शेर है ये तो बस। आईटी वालों ने बेल बजा दी है, ये तो बस ही कर दी है। 22 सेकंड बाकी हैं। मदनी मशवरा हो रहा है, जल्दी कीजिए, टाइम कम है, 17 सेकंड है। जामियातुल मदीना वालों ने अब आखिरी जवाब देना होगा तो ये सिलसिला टाई हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे मजीद किसी फैसले की तरफ। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं आपके पास, 4 सेकंड। ये तो बस उनका करम है कि जो सुन लेते हैं, वरना ये लब कहाँ फरियाद सुनाने के लिए। वरना ये लब कहाँ फरियाद सुनाने के लिए आपने ये शेर पढ़ा और बहुत जल्दी बैल बजाई थी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अल्लाह अकबर, 1 पॉइंट से आगे बढ़ गए हैं। आखिरी शेर है और अब जो ये पूरा करेगा तभी होगा फैसला। अगर आईटी वाले पूरा करेंगे तो जीत जाएंगे और जामिया वाले करेंगे तो ये मुकाबला बराबर होगा, फिर हम फैसला करेंगे, किसी और चीज से आगे बढ़ेंगे। शेर है हश्र में क्या क्या। टीम जामियातुल मदीना, देखें कौन शेर पूरा करता है। जी हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रजा, लौट जाऊं हाथ में, लौट जाऊं आपका दामन आली हाथ में। शेर दुरुस्त पूरा करें।
حشر میں واپس لائن پڑھ 5 سیکنڈ باقی ہیں. حشر میں کیا کیا گھبرائے نہیں. کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤں دامن عالی ہاتھ. شعر درست پورا کرنا ہے. لوٹ جاؤں آخری بار ایک آپ کو میں لوٹ جاؤں ہاتھ میں دامن عالی ہاتھ. لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں دامان عالی ہاتھ میں. لوٹ جاؤں ان کا دامان عالی ہاتھ میں. آپ درست نہیں کر پا رہے ہیں. لوٹ جا. دیکھیں میری مجلس مجھے روک رہی ہے. میں آپ کو حشر میں ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں. حشر میں وارفتگی کے حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤں. آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لوٹ جاؤں جواب نہیں دے پا رہے ہیں خالی ہاتھ میں اور شعر پورا نہیں ہو پا رہا. ایک پورا ورڈ 2-3 ورڈ جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے. شعر ہے لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں. فیصلہ ہو گیا ہے. ٹیم آئی ٹی کو مبارک ہو, یہ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں. اللہ اکبر. پچھلا مقابلہ بھی وہ ٹیم جیتی تھی جو پری کوارٹر فائنل میں پیچھے رہ گئے تھے. آپ لوگ تھوڑی دیر مزید بیٹھے رہیے. ہم انشاءاللہ سلسلے کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ٹیم جامعۃ المدینہ والوں کو ہم تحائف دیں گے اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں. مدینہ انشاءاللہ کل رات پھر ہوگی آپ سے ملاقات. آپ کو تحفہ ماشاءاللہ ہوتا ہے. سلسلہ اسی طرح چلتا ہے اور یہ نصیب کی بات ہے. ٹیم آئی ٹی والوں کو مبارک ہو. یہ اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. کل رات انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. ذوق نعت بھی ہوگا اور انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت بھی آپ دیکھیں گے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس طرح آج مدنی مقابلہ ہوا. جامعۃ المدینہ اور ٹیم آئی ٹی کس طرح آگے بڑھی اور بہرحال کمال مقابلے کے بعد جامعۃ المدینہ والے بہرحال پیچھے چلے گئے ہیں. انشاءاللہ کل رات بھی ذوق نعت اسی طرح اسی انداز سے ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. نعرہ لگائیں فیضان اعلیٰ حضرت, فیض رضا. اور اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے 25 سفر کو لنگر رضویہ کے حوالے سے, تو آپ ہماری مجلس سے رابطہ کر سکتے ہیں میسج کے ذریعے یا کالز کے ذریعے یا فیس بک پہ میسج کر دیں. ہم انشاءاللہ آپ سے خود رابطہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ